Smart English Speaking and Personality Development Institute, a meritorious student all throughout her career as a student, recipient of several awards, successfully completed global management course at ISB Hyderabad, and successfully trained a variety of candidates, students, housewives, professionals, businessmen, etc. She has completed a course in counseling under the able guidance of eminent psychiatrist from Mumbai. She has been associated with several education institutes, instrumental in starting a variety of projects to help motivate and guide the ladies of Vidarbha region to start some independent economic activities. The famous annual event of Nagpur, about which Ms. Madhubala Singh was talking about, Udyojika, was her brainchild. And today she is with us as one of the panelists. Friends, let us put our hands together to welcome Mr. Prafullata Rode. May I request Nikita once again to welcome Prafullata ji with a floral bouquet. So these are our four panelists, and our days won't be complete without the person who is the chairman for today's program, Ms. Madhubala Singh. May I request her to please be on the dais? Please. So stage is all set. डिस्क्लेमर, कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर दूं, आप सबको बुके देने का एजेंडा में नहीं था, वो मैंने अपनी तरफ से किया है कि इसके बाद अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगे तो मैंने आपको फूल देकर के पहले मना लिया है, क्योंकि वी आर नॉट हियर ओनली टू फील गुड अबाउट एवरीथिंग, वी आर हियर अबाउट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज एक्चुअली नीडेड. तो हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हो जो शायद हमको अच्छी नहीं लगे, तो उस समय गुलाबों को देख लीजिएगा, सब अच्छा लगने लगेगा. I'll be using mixed language. अगर आपको लगता है कि हिंदी थोड़ी ज्यादा हो रही है तो आप राइट हैंड उठा सकते हैं, मैं इंग्लिश पे स्विच चाहूंगा. अगर आपको लगता है इंग्लिश ज्यादा हो रही है तो यू रेज योर लेफ्ट हैंड, I'll switch to हिंदी. Fine. For this program on empowering females to get into the field of entrepreneurship, or perks of being a lady entrepreneur, or to prove that we are the people who can lead from front, leading from front. पहले मधुबाला जी ने आकर के अपने विचार रखे कि what was the thought that came and gave the birth to this LEW of VIA, Ladies Entrepreneur Wing of VIA. She talked about the challenges that she has faced, or most of the time the females they face while on the journey towards this entrepreneurship. Then came Deepak ji, उन्होंने आकर के बहुत सारी बातें आपके साथ में रखी, and which has been a real experience of his last 2.5 years. Why 2.5 years? Say last 15 years for which he has been into this kind of a work. इन सब बातों के आधार पर I'll be putting forward few of the questions. कुछ questions ऐसे होंगे जो मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप सब जिसका जवाब दें. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं स्पेसिफिकली किसी एक से या दो से पूछना चाहूंगा, तो दैट डजंट मीन कि उस क्वेश्चन का उत्तर बाकी लोग नहीं दे सकते, बट इट्स ओनली कि हर एक क्वेश्चन को अगर हम 4 लोग जवाब देंगे तो शायद समय बहुत ज्यादा लग जाएगा. वी विश टू स्टिक टू टाइम. वी हैव एग्जैक्टली 60 minutes with us to finish our discussion and to fulfill the need of answers to the question of the audience. अब as rightly pointed out by I think by Madhubala ji, कि so many females they come to a forum just to see कि भी क्या किया जा सकता है इसके अंदर में. मेरे मन में एक इच्छा है, लेकिन उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं मुझे मालूम नहीं है. ये प्रॉब्लम हमें से बहुत लोगों के मन में होती है. नॉट ओनली फीमेल, वाई ओनली फीमेल, टू सो मेनी मेल्स ऑल्सो. इसका मतलब हर जगह ये प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं, कुछ करना है. तो आई जस्ट लाइक टू नो फ्रॉम द लर्नेड पैनलिस्ट हियर, क्योंकि हमने इनके प्रोफाइल में देखा कि हर किसी ने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया हुआ है, कि हाउ कुड यू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी. जब आपने शुरू किया उसके पहले भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, शुरू कर लेने के बाद भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बट हाउ कुड यू आइडेंटिफाई कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच आई कुड हैंग ऑन टू.
और फिर उसके बाद में आपने शुरू किया, तो what was that moment or what was that reason that made you identify that this is the opportunity I should hang on to? To start with, Monica ji. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. That's a very pertinent point that you brought forth, to identify what is that held your interest. In my case, what I am doing currently is what I love, designing paper stationery, and it just fell into. Sir, I think she's audible. My line is basically teaching, because before I got married, lecturing at a college in Calcutta, and I was teaching at Center Point, and I was taking classes privately as well. So my line basically is teaching. What I'm doing is totally in contrast. Now, while I was heading Aptech, I was designing ads for Apple Industries, saying that paperless world, shift to information superhighway, come on to computers, we don't want to destroy trees, switch to computers. This is about 20 years ago. Suddenly, handmade paper came to my notice, and I just absolutely fell in love with it. And I said, hey, this is the need of the hour, because Europe and US was gradually awakening to the fact of eco-friendly paper, recycled paper. And I said, hey, this is our concept, because it's a Gandhian concept. And suddenly everything fell into place. I said, before they wake up to it and they are cashing on to it, why can't we bring forth something which is ours? It's a Gandhian concept, if you know. You know, Wardha mein, it's a leper colony, जो paper बनाते हैं. India में was a mindset कि, I mean, in Maharashtra they won't use that paper कि भाई lepers के हाथ से बना है तो हम उसको कैसे use करेंगे, शादी की पत्रिका में use नहीं करेंगे. All that I went through, but no worries. And so that's how I identified the need of the hour, where I was saying in Aptech, get rid of the paper. In Paper Rage, I said, I'll bring the rage of paper back. And that's how I identified the need of the hour. Properly. I started practicing with him, and I realized not for me, for so many reasons. In spite of having a very good base and practice, then I switched over to banking sector. एक के बाद एक मुझे अच्छी नौकरियां मिलती गई, रिजर्व बैंक जैसा जॉब मिला, बट आई टेल यू कि हर नौकरी में, रिजर्व बैंक जैसे नौकरी में भी मुझे लगता था कि one who can count from 1 to 100 can do any banking job. और अंदर से ऐसी घुटन हो रही थी कि not for me. But I really did not know what was for me. इतना ही पता था कि not for me. Daily I used to come back and grumble, I'm not satisfied. And my husband used to say, you do whatever is your passion. लेकिन अपना पैशन क्या है ये समझने के लिए हर एक की जिंदगी में कितने साल जाएंगे. जैसे राइटली सेड बाय मिस्टर मनेरिया, आजकल के जो बच्चे हैं, यंग स्टूडेंट्स, उनके सामने ऐसे सेमिनार्स हो रहे हैं. हमारे ज़माने, मैं तो इतनी सीनियर हूँ इनसे भी, तो हमने तो कभी सुना भी नहीं था ऐसा कुछ होता है, अपना बिजनेस करना है. इन शॉर्ट, आफ्टर सर्विंग फॉर 10 years in bank, I said Ram Ram to bank, and I said I don't know what I want to do, but I want to do something. But that something was a very big question mark. और बाद में ऐसा हो गया, that was the time कि अपने मेरे कुछ फ्रेंड्स की बच्चियाँ बाहर जा रही थी शादी के बाद, सिंगापुर यहाँ वहाँ, और वो बोलते थे, अरे तेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, थोड़ा सिखा दे इनको, थोड़ा ट्रेन कर दे. ऐसे करते 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 आई फाउंड दैट आई लव टीचिंग. Teaching is my passion. Reading was already my passion, and I combined these two things, and I started my academy, and now I'm absolutely happy. I've been working there, and मतलब बैंक में 8 घंटा 6 घंटा जॉब करना हेडेक होता था. यहाँ मैं 12 घंटा 16 घंटा भी काम करूँगी तो कभी भी थकती नहीं हूँ, because that is the thing which is close to my heart.
But everybody must understand कि मेरा passion क्या है. You should love the work you do. Then only you can enjoy and you can scale up. That's all. Fine. That was wonderful. अनिता जी आप बताएंगे? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई वॉज द मोस्ट लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, कुछ पता नहीं क्या करना है. आई वॉज दैट टाइप. सो आई वॉज बॉर्न इन ए ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फैमिली. एंड साउथ इंडियन लोगों में ये रहता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं. यू आर सपोज टू बी नंबर 1 ओनली इन स्टडीज. बाकी में आप सब में 0 रहो चलेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट लाइक दैट. तो आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली कि ये पढ़ती नहीं है ठीक से. एंड कैसा तो भी करके आई स्टडीड. एंड देन ओनली आफ्टर आई रीच माई ग्रेजुएशन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को भी शायद पढ़ाई में इंटरेस्ट है. तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग प्रॉपरली. आई डिड माई MBA, MIRPM, MA इकोनॉमिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स. देन आई वॉज डूइंग माई PhD इन इकोनॉमिक्स. तो उसके बाद लाइक ए ट्रेडिशनल ब्यूटीफुल एकदम समझदार साउथ इंडियन लड़की की तरह मैं नौकरी करना शुरू की. I worked for about 10-12 years in different organizations. I was enjoying my work, but then it so happened कि somehow I had a feeling कि like my parents were working with WCL, they had a transferable job. तो हमने कई जगह पे हमारे ट्रांसफर्स हुए थे. तो when we came to Nagpur, suddenly I realized कि ये तो बड़ा क्या बोलना चाहिए, laid back जगह है. यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है. There is no excitement. And being a very ambitious person, excitement was a integral part of my life. So I got married. And I got married to a very conservative South Indian family. They are Andhrites. Joint family है, not very educated. And मेरा जो family है उसके exactly opposite है वो लोग. तो क्या हुआ कि after 12 years of working, suddenly I realized कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं पागल हो जाऊँगी नागपुर में. तो I started pestering my husband कि नहीं चलो हम नागपुर के बाहर कहीं जाएंगे. I want to do something and all that. And my husband being a traditional, typical Nagpurian, नहीं नागपुर छोड़ के तो मैं नहीं जाऊँगा. तो we had a conflict on that. घर में झगड़े होने लगे. तो आई सेड कि नहीं, मैं तो आई एम गोइंग टू चक माय जॉब, आई कैन नॉट वर्क. फाइनली हस्बैंड ने सोचा कि अब इसको क्या किया जाए नागपुर में रोकने के लिए. सो देन ही हैड दिस आइडिया. उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि ठीक है तुमको नौकरी मजा नहीं आ रहा ना, ठीक है ऐसा करो बिजनेस शुरू करो. अब वो सुन के तो और होश उड़ गए, क्योंकि बिजनेस क्या है बिल्कुल ही मालूम नहीं था. घर में किसी ने किया नहीं, फैमिली में नहीं, ससुराल में न मायके में. मतलब करे कैसे बिजनेस, क्या करे वही नहीं पता. तो एक बार ऐसा हुआ कि आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ माइन हु ऑल्सो वॉज अ साउथ इंडियन. And he was dealing into Ayurvedic medicines which were manufactured in Kerala. तो एक बार ऐसी बातों में उसने मेरे को बोला कि अरे केरला में इतने अच्छे आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें तुम why don't you get into that? तो I said I have no idea about it. तो said कि नहीं एक काम करो, you come with me to Kerala, I'll take you to that. I am a Keralite, but केरला का बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था मेरे को. तो he took me to Kerala and to the वो जो पार्टी उनके पास मिलाने लेके गए. और वहाँ जाने के बाद पूरे दिन डिस्कशन चलता रहा about exports and manufacturing and trading and what not. सारा होने के बाद लास्ट में शाम को वो लोग जब मीटिंग हम क्लोज कर रहे थे, तो देन दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सेड कि अनीता व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ ट्रीटमेंट सेंटर. आई गेव हिम अ ब्लैंक लुक. ट्रीटमेंट सेंटर क्या है नहीं पता था, बिकॉज आई हैव नेवर स्टेड इन केरला. देन ही एक्सप्लेन टू मी कि जो केरला का जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है वो बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हो. तो आई वॉज वेरी अनडिसाइडेड कि क्या करना क्या नहीं करना, नो आइडिया व्हाट टू डू. सो आफ्टर कमिंग बैक 6 महीना तो मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि पता ही नहीं था करना है कि नहीं करना है. But then my husband said कि ठीक है आप उन लोग बोल ही रहे तो कर ही लो, they are going to give you all the support, so why don't you start it? So that is how I came into business. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एकदम बचपन से मैं बहुत ambitious थी, बहुत सपने देखे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ये एक्चुअली मजबूरी थी जिसको कि मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी में मैंने कन्वर्ट किया एंड आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर. इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है कि आप एंटरप्रेन्योर बहुत सोच समझ के नहीं बनते हैं. बिल्कुल 100%. मतलब ये ख्याल लेकर के हम बैठे हुए कि मैं बहुत सोचूंगा, बहुत प्लान बनाऊंगा कि एंटरप्रेन्योर का ई से शुरू करूंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज. एंड आई टेल यू समथिंग सर, मेरे को 9 अवार्ड्स मिले हैं एंटरप्रेन्योर का, एंड आई बिलीव कि ऑल ऑफ देम आर फ्लूक. ऐसा माइक को ऑन करके मत बोलिए. लेट्स नॉट पुट इट ऑन रिकॉर्ड. लेट्स नॉट पुट इट ऑन रिकॉर्ड. आई कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग कि ऐसा क्या हुआ है. हाँ लेकिन हाँ बराबर है, तो आप प्लीज लौटाने का क्रम मत शुरू कीजिएगा, बिकॉज इनफ ऑफ इट इन इंडिया. आपको नहीं भी पसंद आए तो कम से कम सोचिए कि क्यों मिले हैं. एटलीस्ट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू. आपके अभी तक तो इंट्रोडक्शन पे रुका हुआ है. फाइन फाइन फाइन. बात अभी आई. हाँ पर उसको प्लीज लौटाने का क्रम मत शुरू कीजिएगा. तो या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में अपने पैशन की वजह से आ सकते हैं, हो सकता है कि आपकी हॉबी रही हो और वो आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो. ये भी पॉसिबल है कि शायद किसी से झगड़ करके आपको कोई एक सोल्यूशन मिल जाता है, उसमें भी पॉसिबल है. ऐसे और भी बहुत सारे तरीके, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में जाया जा सकता है. बट देन
आई थिंक कि इट्स नॉट सो रोजी जितना अच्छा हमको दिखता है और जितने अच्छे से मैंने इनको इंट्रोड्यूस करके ऊपर बुलाया है, उतना रोजी पिक्चर हमेशा नहीं होता होगा, बहुत सारे हर्डल्स भी आते होंगे इनकी लाइफ में. सो शिल्पा जी, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द हर्डल्स दैट यू मस्ट हैव फेस्ड इन योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर? पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था, आई वांटेड टू क्लैरिफाई. अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप उसके बारे में बोलोगे कि सेकंड क्वेश्चन पे जाओगे? बारे में थोड़ा सा बोल के देन आई विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. फाइन फाइन फाइन. जो अपॉर्चुनिटी वर्ड ये बोल रहे हैं ना, ये डिक्शनरी में नहीं होता है, ये अभी के इसमें इजाद हुआ है ये अपॉर्चुनिटी वर्ड. 12th पास लड़की 20 साल की, उसको अपॉर्चुनिटी क्या है मारवाड़ी फैमिली में नहीं समझता है. तो ये सबके साथ होता है हमारी शादी के बाद, स्पेशली आफ्टर मैरिज, कि आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके पैशन बहुत सारे रहते हैं, बट वो कन्वर्ट हो पाते हैं क्या? सो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर मैरिज अगर आपके हस्बैंड का बिजनेस आपको मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. कई बार डिफिकल्टी आती है, आपका पैशन नहीं होता है. जैसे मैंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, आई वॉज जस्ट 12th पास, शादी हो गई और बाय फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट मैं बिजनेस ज्वाइन कर ली. 22 ईयर्स ओल्ड थी, बिजनेस का बी नहीं समझता है. सो आपको क्या हुआ जब आप उस बिजनेस में गए? कई बार बहुत गुस्सा आता है, यार इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ये नहीं कर सकती. बट टाइम्स हैव चेंज्ड. आप अपना पैशन ढूंढने जाए, अपनी अपॉर्चुनिटी कई बार नहीं मिलती है वो चीज़ें, स्पेशली आफ्टर मैरिज. व्हाट वी कैन डू इज, उसी चीज में हमारे में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सारा पोटेंशियल है. विमेन जैसा मल्टीटास्कर, विमेन जैसा एम्पैथी, जो पॉइंट उन्होंने बोला, विमेन जैसा जो कर गुजरने की क्षमता है वो मेंस में नहीं है. और हमको कोई टास्क मिला है, विल पुट इन आवर हार्ट एंड सोल इनटू इट टू अचीव इट, चाहे वो घर हो चाहे वो बिजनेस हो. तो मेरे लिए ये चीज काम कर गई और मैं बिजनेस में आ गई और उसके बाद मैंने उसको अपॉर्चुनिटी बना के आज वी आर ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, स्केल अप कर रहे हैं. और आज हमारी फर्नीचर की फैक्ट्री वुड बी अराउंड 1 लाख स्क्वायर फुट, जो हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट किए थे. एंड जो हर्डल्स की बात कर रहे हैं सर, हर्डल्स मुझे लगता है इज बेसिकली सेल्फ इम्पोज्ड. हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि हम ये काम नहीं कर सकते. इट इज सेल्फ इम्पोज्ड. दुनिया क्या बोलेगी, मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, मेरे बच्चे को मैंने टाइम नहीं दिया, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ. इट्स अबाउट द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी. इट इज ऑल सेल्फ इम्पोज्ड. दुनिया आपको बहुत वेलकम करती है बिकॉज जिस काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट वी हैव इन आवरसेल्व्स, आई एम टेलिंग यू, इट्स बीन 15 years इनटू द हार्डकोर इंडस्ट्री. जितने प्यार से आपको वेलकम करती है शायद कोई नहीं करेगा. इट इज जस्ट वी नीड टू नो कि वो सारी चीजें दिमाग से हटानी है. जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. मैं बाहर नहीं जा सकती, क्यों नहीं? You have the art of managing everything. You manage बाई, you manage in-laws, you manage husband. और God gift मिला हुआ है हमको ये. आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. God gift है हमारे पास ये. हम सोशली भी एक्टिव है, हम फैमिली में भी एक्टिव है, हम हमारे प्रोफेशन में भी एक्टिव है. इट इज वी नीड टू फाइंड कि हम ये कर सकते हैं. इट इज ओनली सेल्फ इम्पोज्ड. दुनिया में कहीं चैलेंजेस नहीं मिलते. अगर आप सोचोगे मैं गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जा सकती, आप कभी नहीं जा सकते. एंड आई टेल यू, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, मैन का काम 25 दिन में होगा, आपका काम 5 दिन में होगा. ये तो खैर देखा हुआ है. This is well observed. This is well observed. काम में उनको 25 दिन लगते हैं, उसका 1% में आपका काम होता है. यू गो टू एनी डैम ऑफिस, आपका मशीन का प्रॉब्लम है, मैन मशीन चलाते हैं, आप चलाओ, ज्यादा एक्यूरेसी प्रोड्यूस करोगे मैन में. हम लोग हार्डकोर इंडस्ट्री से है, हर मशीन चलाई हुई है मैंने. सो इट इज देयर इन माइंड कि मैं ये मशीन नहीं चला सकती. आई हैव बीन टू चाइना. वाई चाइना, मलेशिया, सिंगापुर आगे. आज 50% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन इज वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन. आज इंडिया में यही प्रॉब्लम है. हमसे बंद गए हैं. दुनिया, समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, घर क्या बोलेगा, मेरा बच्चा क्या बोलेगा. आई एम टेलिंग यू, बस आगे बढ़ के देखो, वो ककून से बाहर निकल के देखो. आई एम टेलिंग यू, कोई हर्डल्स नहीं मिलेंगे, आप ही हटाते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे. दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैव. फाइन, फुल, वेरी राइटली पुट. बहुत सही तरीके से रखा उन्होंने कि हर्डल्स इनफैक्ट तो दिमाग में है. अब फिर जो चीज को देखोगे वो हर्डल नजर आएगा. अगर दिमाग से निकाल दिया तो हर एक चीज आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी. बट ये है कि अपॉर्चुनिटी लिख करके नहीं आती है कि आई एम एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब मी. वो सिर्फ एक ही बार दरवाजा खटखटाती है और आपको मेंटली फिजिकली तैयार रहना पड़ता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, वापस नहीं मिलेगी.
और कई बार हम दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। कल खोलेंगे। नहीं, कभी नहीं खुलता, प्रॉब्लम टुमारो नेवर कम्स। वो कभी नहीं खुलता है। वो दरवाजा एक बार बंद हो गया, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, वो दरवाजा परमानेंटली क्लोज हो जाता है। फाइन। अभी थोड़ी देर पहले दीपक जी अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब तरीके के रिमार्क से की थी, एंड आई वाज विद इट कि यहाँ पर तो हम लोग माइनॉरिटी में है, और इसलिए मैं 2 माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरी आवाज सही ढंग से कम इसके सपोर्ट से पहुंचनी चाहिए आपके। बाकी सबको एक मिला हुआ है, मेरे पास 2 है। हाँ, बुलंद रहती है, महिलाओं की आवाज बुलंद रहती है। लेकिन मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटी में है। आप माइनॉरिटी में है मतलब मुझ में कितनी हिम्मत लग रही है मुझे कि माइनॉरिटी में खड़े होकर के आपको माइनॉरिटी बनाने की बात कर रहा हूं मैं। वुमेन आर इन माइनॉरिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया की बात करते हैं तो वुमेन आर इन एब्सोल्यूट माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी इज टू बिग वर्ड, बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पे ढूंढना पड़ता है। मतलब आप अभी हम अगर स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो शायद 200 स्टार्टअप्स हम मेन के ला के रख सकते, तो उसके सामने एक स्टार्टअप हम वुमेन का लेकर के आ सकते हैं। इस कंपैरिजन की बात करेंगे हम लोग तो परसेंटेज भी नहीं बैठता है वो। जब हम इस तरीके से आपके सामने बात करते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं, इस तरीके की बात दुनिया में समाज में हो रही है हर जगह कि वुमेन आर इन एब्सोल्यूट माइनॉरिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सुनते हैं तो कैसा लगता है? मैं प्रफुल्लता जी से सुनना चाहूंगा, क्योंकि इतने सालों की आपकी जर्नी रही है, आपने बहुत तरीके के लोगों से बातचीत भी किया होगा। व्हेन यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ फीलिंग और रिमार्क्स और बिहेवियर, कैसा लगता है? लगता तो बहुत खराब है, लेकिन उसके पीछे का कारण अगर देखते हैं, आगे आपने कहा कि you will at least in my life I have seen many men talking and giving beautiful lectures on entrepreneurship, but when it comes to their own wives, big question mark. So that is the answer, I think. That is one answer. Okay. Please don't misunderstand. नहीं है ना, मेरे पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है उसका। That is, मैंने अभी नहीं तैयार किया, पहले से लिखा हुआ है वो। but पहले से लिखा हुआ है। honest observation. Very honest. Number 2, what Shilpa said is, number 1 is family support, because I always feel that we women are like unpolished diamonds. Yes, we have everything. She is much, much more than what she is labeled by others. But you need to polish the diamond and then only it can shine. And for that polishing, she needs 2 things. Number 1 is the motivation and full support by family members. Number of times, वो family support नहीं है करके just blame game करके वो पीछे हट जाती है. That is one thing. She should also realize her own potential, taking benefit of the, like I told you about my journey, whatever I am today is only because of my husband. 110% support and all kinds of adjustments because of my husband, I tell you. So somebody should be there who is standing at your back with full support. Number 2, sometimes I have seen that दया क्षमा शांति ये जो हमारा रूप है वो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है. मुझे कुछ आई हैव सीन नंबर ऑफ लेडीज, मुझे कुछ करना है, ये जिद पकड़ के अगर आप क्रांति करते हो तो मेरा तो विश्वास ये है कि घर में अगर शांति है तभी आप घर के बाहर जाके क्रांति कर सकते हो. अगर मेरे घर में जाकर के तो बाहर क्रांति नहीं आ सकती. नहीं, क्योंकि बिकॉज यू कैरी दैट रेस्टलेस माइंड at your workplace and then it definitely affects your performance. So ये जो balancing है तो वो बहुत जरूरी है और normally we all love to balance all these things. उसकी वजह से जो limitations आते हैं, yes, because family is always on the top priority. और उसकी वजह से number 2 जैसे शिल्पा ने कहा कि awareness about own strengths and the can do attitude. I can do it. मैं कर सकती हूँ, यही एटीट्यूड अगर एक बार डेवलप हो जाए तो फिर देन she can do wonders, I feel, given an opportunity. हाँ, ये हम सब जानते हैं ना कि महिलाओं में शक्ति बहुत ज्यादा होती है और उसके बहुत सारे प्रूफ भी आए हुए हैं. पूरा इतिहास इस प्रूफ से भरा हुआ है. उसके बावजूद भी ये परिस्थिति है कि जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप या आगे आकर के कुछ व्यावसायिक रूप से काम करने की नौबत आती है तो स्टिल वुमेन से कि वो काम मेंस का है. I would like to add one more. इसलिए नंबर बहुत कम है. Let the other panelists talk. Because as far as Indian scenario is concerned, ये जो हम लोग यहाँ ये ऐसी हॉल में बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं और हम लोग मुझे लगता है मुट्ठी भर महिलाएं हैं. Let us think of the rural women. ये 2
बहुत बड़ी वैली है और अर्बन वुमेन एंड रूरल वुमेन, और ये जो डिफरेंस है, व्हेन आई ऑनेस्टली बिलीव दैट एन एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन 3 E's in English. Number 1 is the environment, number 2 is the education a lady gets, and number 3 the experiences she gets in her life. So these 3 E's are totally different in case of urban and rural women, and therefore ये जो hurdles बोल रहे हैं, that is all the root cause is ये 3 E's में है, और उसकी वजह से ये नंबर बढ़ नहीं रहा है। तो कोई ना कोई स्टेप ऐसा लेना चाहिए जिसके अंदर, देखिए एजुकेशन पे तो बहुत लेवल पे काम हो रहा है, एनवायरमेंट तो बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब जहां तक सवाल है एक्सपीरियंस का, दैट विल कम विद टाइम, तो ये बातें आपने सही कही है कि इट्स नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन टू थिंक दैट आई नीड टू ग्रो, बट इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑल द मेन फोक्स, कि भाई सब मिलकर के अगर इस बात को सपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्ली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस नंबर विल इंक्रीज। जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो स्पीड हमको पर्याप्त नहीं लग रही है, थोड़ी सी उसमें स्पीड ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Probably, Monica ji, you might be able to give justice to this answer. That doesn't mean कि आप बाकी लोग नहीं दे सकते हैं, but then एक कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म कॉइन हुआ है आजकल जिसे कहा जाता है न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप, और एक कहा जाता है कि कन्वेंशनल बिजनेस वुमेन। So how do you look at this new age entrepreneurship vis-a-vis business women or conventional business women or new age entrepreneurship women or a womenopreneur? और एक नया शब्द निकला है womenopreneur, women entrepreneur, womenopreneur। तो क्या लगता है आपको? See, first I would like to share this because I'm very much with my speakers here, but I do have my slight difference of opinion, which I will reserve for later. But to answer your question, I think even the Sabzi Wali is an entrepreneur. What's the big deal about this thing, women entrepreneur? My bai is an entrepreneur. She has left her home maybe on some economical reasons and become an entrepreneur and become a sabji wali or become a hawker woman, whatever. But if you go to the history of a woman entrepreneur, in the earlier years, the women who would run the taverns, the motels, the whorehouses, these were the women who were women entrepreneurs but were really looked down upon. Then our men left for wars, and then our women were forced to fill in their shoes. So they were not called entrepreneurs at that point of time, but they were doing what they had to do because the men were not there. Third, the divorce rate in the year, I think 70s, the divorce rate started going up gradually but surely. Then again, women were forced to step out and pick on, to help in the economic situation at home. So they were not called women entrepreneurs. They were just called bread earners, family supplementers, like they were supplementing family economic situation. This is a very trendy term that we have come to accept today as women, female entrepreneurs, this new age entrepreneurs. I am not for it. I think this is just the new age. And somebody said about not too many women known to us in the national level in India as lady entrepreneurs, but I think if we delve in, they are there. We are not aware of them really. In fact, I was happy to note if Nagpur, there's a lady who's on national level as a woman entrepreneur, Sangeeta Patni. She's supposed to be very highly qualified and she's supposed to be a national. And if you Google her, she is part of the Indian Achievers amongst the other hotshot names. Well, coming back to this, this coinage, so at the very outset, I am not in favor of the word, the new entrepreneurship or the new women. So I'm not in favor of that. So I think I'm not the right speaker to justify that. To me, we are entrepreneurs the day we are born, because we are multitasking ourselves from the day we are born. Okay, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप को मान करके खुश हो रहे हैं? Correct. You guys feel superior. We are giving her an award. Yeah, we are acknowledging her achievement. Yeah, but hello, she's let you give us the award. We are entitled to it from day one. Fine. I think we need to understand this term as a new age entrepreneurship vis-a-vis the business women, the conventional business women. क्योंकि हम entrepreneurship के era में जा रहे हैं, whether we like it or we not. But that is tomorrow. Can we request Deepak ji to throw some light on this new age entrepreneurship versus the conventional business? Can we? Yes. I think yes. I'll take this moment to set the context, because
The new age entrepreneurship, when we talk about, it's basically the riding on the wave of innovation, riding on the wave of technology, riding on the wave of scaling up, where without single money in my pocket, can I build $1 billion industry today? This is the new age.